رات کے کھانے کے بعد میں ایک بار پھر اپنے ٹھکانے سے نکل آیا تھا۔ ممبئی کی تیز زندگی میں خودکش دھماکے سے جو عارضی تموج پیدا ہوا تھا اسے ختم ہونے میں بمشکل 2-3 دن لگے تھے۔ اب بس ٹی وی پر تبصروں کی صورت وہ خبر سنائی دے جاتی، ورنہ کئی نئے حادثوں نے اسے پرانا کر دیا تھا۔ ٹیکسی پر بیٹھ کر میں اپنے ٹھکانے سے مناسب فاصلے پر اتر گیا۔ آج میں اس دن والی جگہ سے مخالف سمت آیا تھا۔ درمیانے درجے کے ایک ہوٹل میں کونے کی میز پر بیٹھ کر میں نے چائے منگوائی اور شکلا کو کال ملا دی۔ دوسری گھنٹی پر ہی کال وصول ہو گئی۔ نمستے سر، کیسے ہیں آپ؟ اس نے چھوٹتے ہی تقاضا کیا، جوان تمہیں ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں اس ملاقات کا متحمل ہو سکتا ہوں؟ اس نے یقین دہانی کی کوشش کی، بولا تمہیں ہر طرح کی حفاظت مہیا کی جائے گی، 50 لاکھ روپے انعام دوں گا، باقی تمہاری میڈم اور اس کی تنظیم کی ذمہ داری بھی میں سنبھالتا ہوں، اور یاد رہے میں اکیلا نہیں، را کی پوری قوت اور طاقت میرے ساتھ ہے۔ میں نے کہا، سر ایسا ہی ہے، لیکن میں اپنے اندیشوں کو کیسے جھٹلاؤں؟ فائدہ نقصان روپے پیسے کا ہو تو خطرہ مول لینا مشکل نہیں ہے، لیکن جب جان پر بنی ہو تو کسی تسلی اور دلاسے پر یقین کرنے کو دل نہیں کرتا۔ اس نے بڑک ماری، بالک تم کسی ایرے غیرے سے نہیں، انڈین آرمی کے جنرل سے بات کر رہے ہو۔ میں نے کہا، بھارت ماتا کے سپوت کی عزت اور وقار سر آنکھوں پر، پرنتو شمع چاہتا ہوں مہاراج، یہ میدان جنگ نہیں ہے کہ آپ دشمن کو پاؤں تلے روند دیں گے، یہ تو چالاکی، عیاری، دھوکے بازی کی جنگ ہے، اور اس میدان میں ہمارے فوجی آفیسر سادہ لاہ اور بھولے بھالے ہوتے ہیں۔ جرائم پیشہ افراد کے پیش نظر کوئی ضابطہ یا اصول نہیں ہوتا، اور آپ ٹھہرے اصول پرست، خوددار اور سیدھی سچی بات کرنے والے۔ میں اسے بانس پر چڑھاتے ہوئے انکار پر ڈٹا رہا۔ وہ بولا، تم ایک سمجھدار اور بہادر جوان ہو، اور بالکل صحیح کہہ رہے ہو، میں جرائم پیشہ افراد کی چال بازیوں سے واقف نہیں ہوں، لیکن یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ میری پشت پر را جیسی تنظیم ہے، جن کا کام ہی دشمن ملک کے عیار جاسوسوں اور دھرتی ماں سے غداری کرنے والے مکاروں کو پکڑ کر انجام تک پہنچانا ہے۔ میں نے کہا، سر میں اب آپ کی نواسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیتا ہوں، اور کوشش کروں گا کہ اسے جلد از جلد بھاگنے کا موقع مل جائے، یوں کہ میری ذات بھی شک کی زد میں نہ آئے، لیکن آپ سے مل نہیں سکتا، بھگوان میری رکشا کرے، بہت بری جگہ پر پھنس گیا ہوں۔ وہ پرملامت لہجے میں بولا، یار سمجھنے کی کوشش کرو، تمہیں ایک عورت ہمارے مقابلے میں ناقابل شکست لگ رہی ہے، اب اس سے زیادہ ہماری کیا توہین کرو گے؟ میں کھسیانے لہجے میں بولا، سر وہ ایک عورت نہیں ہے، اس کی پشت پناہی بھی کوئی بین الاقوامی دہشت گرد تنظیم کر رہی ہے، اور اس نے واضح بتایا ہوا ہے کہ اگر کسی نے اس کی مخبری کی تو وہ تفتیش کے چکر میں نہیں پڑے گی اور تمام مقامی افراد کو ختم کر دے گی۔ شکلا بولا، تم اس کی لا علمی میں مجھے کال بھی تو کرتے ہو، اسی طرح چوری چھپے ملنے بھی آ جاؤ۔ بے شک اپنی میڈم کا پتہ مت بتانا، میں بس رائفلوں کے موضوع پر گفتگو کروں گا۔ شاید تمہیں معلوم نہ ہو، اس دن ایک خودکش بمبار کی وجہ سے ہمارا وہ گودام ہی دھماکے سے اڑ گیا ہے جس میں نئی رائفلیں ذخیرہ تھیں۔ مجھے رائفلیں جانچنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ اب مزید رائفلیں منگوانے سے پہلے میں آپ سے پوری تفصیل سننے کا خواہاں ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتا دوبارہ کوئی ایسا سودا کر بیٹھوں جس میں پھنسنے کا امکان ہو۔ پہلے تو بھگوان کی کرپا سے بچت ہو گئی، بار بار ایسا اتفاق نہیں ہوتا۔ میرا دل چاہا کہ زوردار قہقہا لگاؤں۔ اس مطلب پرست خود غرض نے جب اپنی گردن پھنستی دیکھی تو وہ گودام ہی دھماکے سے اڑا دیا جس میں SR-1 رائفلیں ذخیرہ تھیں۔ یقیناً اس نے 1-2 رائفلوں کی جانچ کروا کر میری خبر کی تصدیق کی ہوگی۔ یوں بھی کسی رائفل سے 50-60 گولیاں چلانے میں دیر ہی کتنی لگتی ہے، اور جانچنے کے بعد اس کے پاس رائفلوں سے جان چھڑانے کے علاوہ چارہ نہیں رہا ہوگا۔ لازماً وہ نئی رائفلوں کو ذخیرہ کر کے تو نہیں رکھ سکتا تھا، کیونکہ نئے اسلحے کی آمد کے 1-2 دن کے اندر ٹیکنیکل ٹیم اس کی جانچ پڑتال کو تشکیل دی جاتی ہے، جس میں فائرر، پرزوں کی جانکاری رکھنے والے، ایمونیشن جانچنے والے اور اسلحہ سازی کے ماہر موجود ہوتے ہیں، اور ٹیم جیسے ہی ہتھیار کو پاس کرتی ہے، ہتھیار مختلف فارمیشنوں کے اسلحے سے متعلق شاخوں کو تقسیم کر دیے جاتے ہیں، جو وہ ہتھیار فارمیشن کے ماتحت آنے والی یونٹوں کو بانٹ دیتی ہیں۔ ایسی ہی ٹیکنیکل ٹیم اسلحہ منگوانے سے پہلے بھی مقرر کی جاتی ہے، لیکن شکلا نے پرما کی خاطر کچھ زیادہ ہی تیزی دکھائی تھی۔ یہ بھی ممکن تھا SR-1 خریدنے کی تیاری پہلے سے مکمل ہو، کیونکہ جب قید میں تھے تب بھی SR-1 کا سودا تو ہو چکا تھا، البتہ معاہدے پر عمل درآمد سے پہلے ہمیں بھاگنے کا موقع مل گیا تھا۔ تب شکلا نہایت سستے داموں رائفل خرید رہا تھا، اور اب لورا نے اچھی خاصی قیمت وصول کی تھی۔ اس کے گھناؤنے فعل پر مجھے حیرت نہیں ہوئی تھی۔ بھارت کی سیاست پاکستانی سیاست سے بھی کئی گنا زیادہ گھٹیا ہے۔ یوں بھی ہندو سیاست کی بنیاد چانکیہ کوٹلیہ کے بتائے ہوئے مکر و فریب کے طریقوں پر رکھی گئی ہے۔ مورخین اس کی پیدائش 4 صدی قبل مسیح کا نصف اول بتاتے ہیں۔ یہ پاکستان کے عظیم شہر ٹیکسلا میں پیدا ہوا تھا، جو مختلف تہذیبوں اور بادشاہتوں کا مسکن رہا ہے۔
कौटल्या ज़ात का ब्राह्मण था, लेकिन बहुत ज्यादा बदसूरत था और अपनी बदसूरती पर उसने इल्म व दानिश का पर्दा डाले रखा। उसने 150 अबवाब पर मुश्तमिल अर्थशास्त्र नामी किताब उस वक्त के राजा की रहनुमाई के लिए लिखी थी। कौटल्या उर्फ चाणक्य के लफ्जी मानी ही अय्यार हैं। मुतदिल मिजाज हिंदू अदीब तस्लीम करते हैं कि कौटल्या की किताब ऐसी सियासत की तालीम देती है जो बेरहमी और जुल्म की अलंबरदार है और जिसमें हुकूमत के वज़रा को धोखादही की तालीम दी गई है। ऐसी किताब जिसमें मोहब्बत के रिश्ते खूंरेजी में बदल जाते हैं। मैंने चाणक्य को देखा ना उसकी किताब अर्थशास्त्र तक रसाई है। अलबत्ता मेरी समातें चाणक्य के ऐसे ही चेले की आवाज सुन रही थी जिसने जाती फायदे के लिए वतन की परवाह की और ना बेचारे पहरेदारों की जान की। यकीनन ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। अपने मफाद की खातिर न जाने कितनी बार पाकिस्तान नामालूम दहशतगर्द और बेगुनाह मुजाहिद मूरद इल्जाम ठहराए जा चुके हैं। भारतीय सियासतदानों और आर्मी के लिए किसी भी दहशतगर्दी की वजह पाक आर्मी और ISI को ठहराना आसान सा हल है और आफरीन है भारतीय अवाम पर जो उसे ऐसे ही हकीकत मानते हैं जैसे 1 करोड़ देवताओं को सच्चा मानते हैं। इस मौजू पर काफी दलाइल और शहादतें दी जा सकती हैं, मगर मेरे पेश नजर भारतीय सियासत या हिंदू की पाकिस्तान दुश्मनी नहीं है। एक तफरीही नॉवल में शकील और बस आदत से मजबूर होकर चंद बातें कह जाता हूँ। मैंने गोया बादल नखास्ता हामी भरने का इंदिया दिया। अच्छा सर, मैं आपसे अकेले में कैसे मिल सकता हूँ जहाँ बस मैं और आप हो, कोई तीसरा मौजूद ना हो। वो बोला, ये हुई ना जवानों वाली बात। उसने मक्खन लगाने में फराख दिली का मुजाहिरा किया। बोला, यकीनन तुम किसी भी तरह सरहद पर पहरा देने वाले सपूत से कम नहीं हो। सीधा मेरी कोठी में चले आओ और निश्चिंत रहो, हम दोनों ही होंगे, कोई तीसरा वहां नहीं होगा। मैंने इनकार करने में एक लम्हा भी न लगाया और कहा, नामुमकिन, हम कहीं बाहर मिलेंगे। मैं अच्छी तरह इत्मीनान करने के बाद ही आपके करीब आऊंगा। शुक्ला मुझे समझाने लगा, जो लोग तुम्हें मेरी कोठी में देख लेंगे उनके लिए किसी और जगह हमारी मुलाकात का पता लगाना कौन सा मुश्किल है। मैं फौरन बिदकते हुए बोला, यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ सर कि हमारा मुलाकात करना ठीक नहीं है, इसलिए रहने दें। उसने फौरन पेंतरा बदला। उफ़ो, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। बहरहाल कहो किस जगह मिलना चाहते हो, मैं पहुंच जाऊंगा। उसे बात करते हुए इतनी देर हो गई थी कि अब मजीद बैठना खतरनाक हो सकता था। चाय की खाली प्याली के नीचे 50 रुपए का नोट रख कर मैं बैरूनी दरवाजे की तरफ चल पड़ा। होटल से बाहर निकलते ही मैंने मोहतात अंदाज में दाएं बाएं का जायजा लिया और फिर सड़क के किनारे चलने लगा। इस दौरान शुक्ला से बातचीत जारी रखी। मैंने कहा, सर जगह के बारे में तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं है। उसने दोबारा मशवरा दिया, बालक मेरी मानो तो मेरी कोठी से बेहतरीन जगह कोई नहीं है। मैं झिझकते हुए बोला, सर आप साहिल समंदर पर आ सकते हैं। उसने झल्लाते हुए कहा, इससे क्या होगा? मैंने कहा, मेरा जी चाहता है किसी भीड़ वाली जगह पर मुलाकात हो, यूं मुझे इत्मीनान रहेगा। उसने किसी नई सोच के ज़ेरे असर इश्तियाक से पूछा, क्या तुम्हारी मैडम ने मेरे साथ अपनी दुश्मनी का तुम्हें बताया हुआ है? मैंने कहा, सर आपको बताया तो था, मुझे इत्तेफाक ही से उसकी गुफ्तगू सुनने का मौका मिला और तब आपके नाम तक रसाई हुई और मजीद खोज के बाद छुपकर आपसे गुफ्तगू करने पर तैयार हो गया। अगर आप फौजी न होते तो कभी बात न करता। बस भारत माता के ऐसे सपूत जिसने सारी जवानी देश की खिदमत करते हुए बिताई हो, उसे होशियार किए बिना नहीं रहा गया। उसने एकदम सवाल किया, मेरा नंबर किससे मिला? शायद मुझे गड़बड़ाना चाहता था। मैंने कहा, मैडम ने आपसे गुफ्तगू को कई फोन रखे हुए हैं और तमाम में आपका नंबर दर्ज है। मैंने बेझिझके जवाब देकर उसे मायूस किया था। वो बोला, अच्छा परसों मेरे पोते की सालगिरह है जिसे मनाने का एहतमाम बड़े पैमाने पर नहीं किया जाता। अगर चाहो तो खुसूसी तकरीब का इंतजाम कर सकता हूँ। तुम्हारी भीड़ में मिलने की तमन्ना भी पूरी हो जाएगी और कोई देख ले तो मेरे किसी मुहाफिज को अपना दोस्त बता कर कह देना कि उससे मिलने गया था। उसके मशवरे ने मेरे खून की गर्दिश तेज कर दी थी। दिल चाहा फौरन से हामी भर लूं, लेकिन फिर बेसब्री दिखाना मुनासिब मालूम न हुआ। सोचने की अदाकारी करते हुए मैंने कहा, सर मैं... ये कहकर मैं खामोश हो गया। वो बोला, यार अपना नाम ही बता दो ताकि मुखातिब करने में आसानी हो। मैं झिझकते हुए बोला, बलराम कोलनकर। उसने जज्बाती धौंस जमाना चाही। बोला, बलराम तुम अपनी मायानाज आर्मी के जनरल की यकीन दहानी पर एतमाद नहीं कर रहे? क्या अपनी फौज की इतनी ही इज्जत तुम्हारे दिल में है? मैं लहजे में अकीदत समोते हुए बोला, सर कैसी बात कर रहे हैं? जान पर खेल कर आपको इतनी अहम खबरें इसलिए बताई हैं कि आप फौजी हैं। दूसरा कोई कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना होता, मैं ऐसा सोचने की जहमत ही गवारा न करता। उसने लहजे में मायूसी पैदा की। बोला, तुम्हारे कौल और फेल का तजाद मेरे यकीन की राह में हायल हो रहा है। उसकी कोशिश मुझे हर हाल में मुलाकात पर तैयार करने की थी।
एक बार मैं उसके हाथ आ जाता फिर मुझसे सब कुछ उगलवाना मुश्किल नहीं था। उसकी नवासी भी मिल जाती और लॉरा भी हाथ आ जाती और लॉरा की गिरफ्तारी से वो अपनी रकम भी वापस ले सकता था। गो नुकसान भारत सरकार का हुआ था, लेकिन यूं किसी और का इतनी दौलत उससे निकलवा लेना भी उसे हजम नहीं हो रहा था। मेरी शुरू ही से यही कोशिश रही थी कि उसके सामने अपनी शख्सियत का ऐसा नक्शा खींचूं गोया अपने देश और फौज की मोहब्बत मेरे नजदीक बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है, और इसमें काफी हद तक कामयाब भी हो चुका था। वो मेरे बिछाए हुए जाल में कदम धर चुका था, बस फौरन हाँ करके उसे शुबे में नहीं डालना चाहता था। और अब उसका इसरार और जज्बाती धौंस जमाना काफी बढ़ गया था, तो मुझे तो नुकरहन हामी भरने का मौका मिल गया था। मैंने कहा ठीक है मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं दौरान तकरीब ही आपको मिलूंगा। तकरीब के खात्मे से पहले मुझे वापस आना होगा। इत्मीनान का इजहार करते हुए उसने मुझे लालच दी, बोला तुम्हारे 10-15 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा, और याद रखना इन 10-15 मिनट में तुम लखपति बनने वाले हो। जनरल धीरेंद्र शुक्ला इतना कमजोर नहीं कि खुद से अकीदत और मोहब्बत रखने वाले की माली सहायता न कर सके। मैंने भोलेपन से अपनी ख्वाहिश जाहिर की, सर मुझे अपनी कार लेने का शौक है। उसने लालच देना जारी रखा, बोला परसों तुम एक नई और कीमती कार के मालिक बन जाओगे। उसके बाद हमने 2-3 मिनट बातें जारी रखते हुए मुलाकात की मजीद तफसीलात तय की, और फिर मैंने इजाजत लेकर जय हिंद का नारा लगाया और राब्ता मुनक़ता करके मोबाइल फोन बंद कर दिया। एक मुश्किल मरहला तय हो गया था। मुझे उम्मीद थी मैं ऐसा मौका तलाश करने में कामयाब हो चुका था कि शुक्ला पर कामयाब वार कर सकता। किसी खाली रिक्शे या टैक्सी की तलाश में नजरें घुमाते हुए मेरे दिमाग में विश्वास सिंह का ख्याल दर आया। मैं वादे के मुताबिक उससे गुफ्तगू नहीं कर पाया था। यकीनन मेरे कॉल न करने पर उसे हैरानी और मेरे बारे में परेशानी हुई होगी। डॉक्टर सुजाता के भाई का घर ज्यादा महफूज समझते हुए मैंने फिलहाल उसके पास जानना मौखर किया था, लेकिन इस बारे में बता नहीं सका था। अपना जाती मोबाइल फोन निकाल कर मैं प्रीतो भाभी का नंबर मिलाने लगा। 2-3 घंटियों के बाद ही निस्वानी हेलो मेरे कानों में पड़ी। मैंने फौरन अपना तारुफ करवाया, प्रीतो भाभी राजा बोल रहा हूँ। उसने अपनायत भरे लहजे में कहा, सत श्री अकाल वीर जी, कहाँ गायब हैं? विश्वास ने तो आपके बारे में पूछ पूछ कर मेरे दिमाग की लस्सी बनाई हुई है। मैंने पूछा कहाँ है वो बोली लें बात करें। लम्हा भर के बाद विश्वास सिंह की आवाज आई, अबे किधर छुपा है? एक दिन का बता कर गए थे और हफ्ता होने वाला है। मैंने कहा कुछ न पूछो यार, उस दिन फंसते फंसते बचा हूँ। दुश्मनों ने मेरे ठिकाने पर छापा मारा था, किस्मत अच्छी थी जो फरार होने में कामयाब हो गया। बहरहाल मैं चंद दिनों तक तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा और फिक्र न करो, अब बिल्कुल खैरियत से हूँ। वो बोला तुम्हारी आमद का सख्ती से मुंतजिर हूँ, दादा भी प्रणाम कह रहे थे। मैंने कहा उन्हें मेरा आदाब कह देना, फिलहाल वक्त नहीं है, मिलने पर लंबी गप्पे हाँकेंगे। मैंने इजाजत लेकर राब्ता मुनक़ता कर दिया। थोड़ी देर बाद खाली टैक्सी मिल गई थी। ओयू फ्लैगशिप होटल के पास उतरकर मैंने टैक्सी फारिग की और पैदल चल पड़ा। लॉरा बड़ी शिद्दत से मेरी मुंतजिर थी। छूटते ही पूछने लगी क्या रहा? मैंने कहा कामयाबी। उसने बेसब्री जाहिर की, तफसील बताओ। मैंने कहा परसों शाम को उसकी कोठी के सब्जाजार में उसके पोते की सालगिरह की तकरीब का एहतमाम किया जा रहा है, वहीं अपनी मुलाकात तय हुई है। लॉरा की आंखों में मुसर्रत भरी चमक उभरी। क्या वो अहमक नहीं जानता कि उसके मुखालिफिन स्नाइपर हैं? मैंने तज्जिया किया, शिकार को जब शिकारी होने की गलत फहमी में मुब्तला किया जाए तो वो बहुत सी एहतियातों को नजरअंदाज कर देता है। अपने तई वो मुखालिफ को फांस रहा होता है और अनजाने में खुद फंसता जाता है। मैंने तकरीब का मशवरा दिया, ना मुलाकात का और ना आसानी से हामी भरी। बाकी उसे ये भी लग रहा है कि तुम्हारा बदला पूरा हो गया है, क्योंकि रकम भी मिल गई है और तुमने उसकी नवासी की इज्जत भी खराब कर दी है, और अब बज़ाहिर बदला लेने की बारी उसकी बन रही है। उसकी मुसलसल यही कोशिश थी कि मैं किसी तरह उससे मिलने पर आमादा हो जाऊं। यूं मुझ पर काबू पाकर वो तुम्हारे बारे में सब कुछ उगलवा लेगा। वो मुतबस्सम हुई, लगता है इंडिया में अपना दाना पानी पूरा हो गया है। मैं मुत्तफिक होते हुए बोला, जानती हो 2-3 दिन पहले मुंबई में जो दहशतगर्दी की कार्रवाई हुई है उसके पसे पर्दा शुक्ला का मनहूस वजूद ही था। लॉरा मुताज्जिब हुई, भला वो कैसे? मैंने उसे तफसील बता दी। लॉरा के चेहरे पर मुसर्रत उभरी, राजा ये तो बड़ी खुशखबरी सुनाई है। मैंने पूछा भला वो कैसे? वो बोली यार SR-1 राइफलों के जाया होने के बाद वो हमारी कंपनी पर धोखाधड़ी का मुकदमा ही दायर नहीं कर सकता। खबीस ने अपनी जान बचाने के चक्कर में हमारे लिए भी सहूलत पैदा कर दी। अब उसके मुर्दार होने के बाद तो किसी को मालूम ही नहीं होगा कि SR-1 राइफल में क्या खामी पाई जाती है। मैंने पूछा, गोया दोबारा अपनी रकम इसी कारोबार में झोंकना चाहती हूँ? वो ख्वाबनाक लहजे में बोली, बिल्कुल नहीं, बस शादी करके दुनिया की सैर को निकलेंगे। मैं हंसा, तो तुम्हारी शादी से पहले शुक्ला की मौत का मंसूबा ना सोच लें? उसने मशवरा दिया, मेरा ख्याल है कोई मुनासिब जगह ढूंढने के लिए गूगल का सहारा लेते हैं। मैंने कहा चलो, और मैं ख्वाबगाह की तरफ बढ़ गया।
कंप्यूटर ऑन करके हम इंटरनेट पर मुंबई का नक्शा देखने लगे और फिर काफी देर किसी होटल की तलाश करते रहे। इससे पहले भी हम शुक्ला की कोठी को हदफ बनाने की कोशिश कर चुके थे। तब हमने विशाल गुप्ता की फरमाइश पर शिवाजी आर्केड को कमीनगाह चुना था, लेकिन अब वो जगह मुनासिब नहीं थी। अगर शुक्ला के दिल में राई बराबर भी शक होता तो उसने शिवाजी आर्केड की निगरानी जरूर करवानी थी। 2-3 मकामात का इंतखाब करके हमने अगले दिन वहां की तफसीली रैकी का मंसूबा बनाया और आराम करने लेट गए। 10 बजे हम जाने को तैयार थे। परमा को नाश्ते में ख्वाबावर दवाई पिला दी थी क्योंकि हमारा काम काफी तवील था। शाम तक बमुश्किल ही वापसी हो पाती। लौरा उसे हथकड़ी लगाने पर बजिद हुई, लेकिन मुझे मुनासिब न लगा। हमने रात को लौटना था और इंसान फितरती हाजतों के सामने बेबस होता है। बंधे होने की हालत में बेचारी क्या करती? कोई जानवर तो थी नहीं कि अपनी गलाजत उसके लिए बेमानी होती। वैसे भी लकड़ी का दरवाजा इतना मजबूत था कि परमा जैसी नर्मो नाजुक लड़की उसे तोड़ने का ख्वाब भी नहीं देख सकती थी। जाने से पहले मैंने एक नजर परमा को देखना जरूरी समझा था। वो बगैर कंबल ओढ़े सो गई थी। सर्दी की वजह से घुटने छाती तक सुकेड़े वो छोटी सी बच्ची लग रही थी। उसे कंबल ओढ़ा कर मैं बाहर निकला और दरवाजा बाहर से बंद करके नीचे आ गया। लौरा ड्राइविंग सीट संभाले मेरी मुंतजिर थी। मुंबई में बुलंदोबाला इमारतों की कमी नहीं है। ज्यादातर अच्छे होटल कई मंजिला हैं। यहाँ एक बात की वजाहत कर दें कि उमूमन मकामात और अफराद के असल नाम नहीं बताए जाते। 2 होटलों की तफसीली रैकी के बाद हम BS रॉयल्स मुंबई के अंदर मौजूद थे। ये एक 40 मंजिला बेहतरीन होटल था। पहले होटलों को हम मुत्तफिका राय से मुस्तरद कर चुके थे क्योंकि शुक्ला की कोठी और इन होटलों के बीच ऐसी इमारतें हायल थीं जिनकी वजह से कोठी के सब्जाजार तक दिखाव मुयस्सर नहीं आ रहा था। BS रॉयल्स मुंबई पहले वालों से भी बुलंद था। उसके और शुक्ला की कोठी के दरमियान कोई ऊंची इमारत भी मौजूद नहीं थी और होटल की खिड़कियां भी ऐसी बनी हुई थी जहां से फायरर लेट कर फायर कर सकता था। लौरा ने छत से फायर करने का मशवरा दिया, लेकिन मैं किसी कमरे को कमीनगाह बनाने पर मुसिर था। छत पर हरदम किसी न किसी की आमद का शुबा रहता, जबकि कमरे में हम बिल्कुल इत्मीनान से फायर कर सकते थे। लौरा ने मुंह बनाया, बोली बालाई मंजिल पर कोई खास कमरा नहीं है। मैं इत्मीनान से बोला, आर्जी तौर पर किसी भी कमरे के मकीनों को यरगमाल बनाना मुश्किल नहीं होगा। वो मुत्तफिक हुई, बोली ठीक है, लेकिन फिलहाल छत ही से जायजा लेते हैं। हम छत पर चढ़ गए। शुमाली जानिब की मुंडेर के साथ औंधे लेट कर मैंने आंखों के साथ दूरबीन लगा ली। लौरा ने भी मेरे पहलू में जगह संभाल ली थी। मेरा मोबाइल फोन बजा। दूरबीन लौरा की तरफ बढ़ाकर स्क्रीन पर निगाह दौड़ाई तो डॉक्टर सुजाता का नाम चमका। उसकी कॉल उमूमन आती रहती थी। वो वक्त उससे गप्पे हाँकने का नहीं था। कॉल मुनक़ता करते हुए मैंने पैगाम भेज दिया, फिलहाल मसरूफ हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। मोबाइल जेब में डालकर मैं बैग से लेजर रेंज फाइंडर निकालने लगा। उसे मुख्तसरन LRF कहते हैं। उसी वक्त जवाबी पैगाम की घंटी बजी। यकीनन सुजाता ने ठीक है का पैगाम भेजा था, मगर इतना वक्त कहाँ था कि पैगाम पढ़ पाता। मैसेज टोन को नजरअंदाज करते हुए मैंने LRF आंखों पर लगाकर कोठी की अंदरूनी इमारत पर मुर्तकिज किया और ट्रिगर बटन को 1 सेकंड दबाकर छोड़ दिया। अगले ही लम्हे LRF की अंदरूनी स्क्रीन पर 2079 का हिंसा चमका, जो इमारत का फासला था। 1-2 शॉट लेकर मैंने फासले की तस्दीक की और फिर LRF लौरा की जानिब बढ़ा दिया। उसने भी फासला नापा और साथ ही फिक्रमंदी से बोली, यार कुछ ज्यादा नहीं है। मैंने पूछा कितना है? वो मायूसी से बोली 2080। मेरा ख्याल है शिवाजी आर्केड से फायर करना ही बेहतर था। मैंने पूछा SR1 की रेंज कितनी है? वो बोली 2 किलोमीटर। मैं मुतबस्सम हुआ, फिर फिक्रमंदी काहे की? वो मुदब्बिराना लहजे में बोली, मौका जाया करने वाली बात है। इतने फासले पर गलती की गुंजाइश मौजूद रहती है। जब करीब से फायर करने की सहूलत मौजूद है तो क्यों खतरा मोल लिया जाए? मैंने कहा SS पर सचमुच एतबार नहीं रहा या जानबूझकर तौहीन पर तुली हो? पुरएतमाद लहजे में कहते हुए मैंने उसकी पुरकशिश आंखों में घूरा, जो शोख नीले लेंस की वजह से गुलगारे की आंखों जैसी थी। मेरा हाथ थामते हुए उसने सफाई पेश की। चाहती थी ट्रिगर मैं दबाऊं और बस। मैंने कहा, और मैं चाहता हूं अपनी दोस्त की तौहीन का बदला मैं लूं, ताकि जब वो बहुत ज्यादा दूर चली जाए तब भी मुझे भुला ना सके। उसकी आंखों में हल्की सी नमी नमूदार हुई और वो जज्बाती होते हुए बोली, इतना आसान है ना तुम्हें भुलाना? मैंने फौरन मौजू तब्दील किया, चलें? 2 होटलों की रैकी अब भी
अभी बाकी हैं और दोपहर ढलने को है। अंधेरा होने पर इत्मीनान बख्श देखभाल नहीं हो सकेगी। दिलफरेब मुस्कुराहट होंठों पर बखेरते हुए बोली, चलो। नीचे उतरकर हम अगले होटल की तरफ बढ़ गए। पार्किंग में कार खड़ी नहीं कर पाए थे कि मोबाइल फोन बजने लगा। डॉक्टर सुजाता की कॉल आ रही थी। राब्ता मुनक़ता करके मैंने गियर पर हाथ रखा, लेकिन घंटी दोबारा बजने लगी। इसे क्या मसला है? नागवारी से कहते हुए मैं कार रिवर्स करने लगा। मोबाइल की घंटी मुसलसल बज रही थी। लौरा ने पूछा, कौन है? कोफ्त भरे लहजे में मैंने कहा, डॉक्टर सुजाता, और मैंने कार मुनासिब जगह लगा दी। लौरा मुस्कुराई, हमारी मुअत्तक़िद हो गई है ना, इसलिए हाल अहवाल पूछने को कॉल कर लेती है बेचारी, इसमें गुस्सा काहे का? मैंने मुंह बनाया, मौका महल भी देखा जाता है। मैं बार बार कॉल काट रहा हूँ और वो घंटी किए जा रही है। लौरा मानी खेज लहजे में बोली, खूबसूरत लड़कियों को नजरअंदाज होना अच्छा नहीं लगता जनाब, और अब कॉल वसूल कर ही लो, कहीं मुश्किल में न फंसी हो बेचारी। मैंने इस बात में सर हिलाते हुए मोबाइल फोन कान से लगा लिया। वो चीख पड़ी, कॉल क्यों नहीं उठा रहे? मैं नरमी से बोला, हौसले से डॉक्टर साहब, क्या हो गया है जो हाँप रही हो? उसने बगैर किसी तमहीद के कहा, बालाई मंजिल के कमरे में एक लड़की बंद थी। हमने उसे परमा के बारे में बिल्कुल सुनगुन नहीं लगने दी। यूं भी वहाँ वो सिर्फ एक दिन आई थी, फिर मैंने मना कर दिया था, इसलिए कॉल पर बात कर लेती थी। मैंने कहा, परेशान ना हो, मैं आकर वजाहत कर देता हूँ। डॉक्टर सुजाता ने मेरे सर पर बम फोड़ा। वो भाग गई है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस्लामी और तारीखी शख्सियात पर मबनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल दास्तान को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आप कौन सी तारीखी और इस्लामी कहानियां सुनना चाहते हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। इंशाल्लाह अगली किस्त में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज।